Good morning, students. Today we will practice some numericals based on the topics that we have covered. So let us start the first numerical. Student, as we can study in this picture, that given in the figure are two blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton respectively. आपका जो A weight है 20 Newton है, B weight 100 Newton respectively. B weight is attached to the wall. These are being pressed against a wall by a force F. ये force F दे दिया horizontal. Now student, coefficient of friction between the blocks is 0.1. मतलब A और B के बीच में coefficient of friction कितना है 0.1. And between the block B and wall is 0.15. यहाँ थोड़ा ज़्यादा है. इस इंटरफेस पे है 0.15 coefficient of friction. फिर इन्होंने कहा है कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी. मतलब इन दोनों के बीच में जो है आपको निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स. तो स्टूडेंट वी विल ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स. जैसे हमने ए ब्लॉक लिया, बी ब्लॉक लिया. अब इनका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो ए में हमने बनाया एफ फोर्स इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. अब ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा. That will be towards the body, that is N1. Now its weight 20 Newton in the downward direction. Clear, student? And because due to gravity its tendency will be to move downwards due to its weight, so friction force will be in the upward direction denoted by small f1. Now let us understand the free body diagram of body B. अब body B पे student एक तो weight हो गया इसका 100 न्यूटन, ठीक है, और एक A और B का जो इंटरफेस पे F1 जितना ऊपर होगा उतना ही F1 डाउनवर्ड होगा. इसी तरह से ही B और जो वॉल के बीच में जो इंटरफेस है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा N2. और जैसे हमने A बॉडी का कहा था टेंडेंसी नीचे जाने का, ऐसी B बॉडी की भी टेंडेंसी है नीचे जाने की. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा इसमें अगेंस्ट द वॉल सरफेस F2 which is in the upward direction. So this is the complete free body diagram of body B. Clear, student? इसी तरह से जो N1 A पे था उतना ही N1 B पे इधर होगा, क्योंकि इस पे इंटरफेस पे सम ऑफ द फोर्सेस क्या होगा 0. So therefore we are drawn this arrow N1. This force vector is N1. Now we can see that F1 is equal to 20 Newton, ठीक है, by balancing the forces in y direction of the block A. ब्लॉक A में अगर हम स्टूडेंट y डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हम पाएंगे कि F1 की वैल्यू कितनी आ गई 20. अब F2 निकालना है तो इसमें भी हमने फोर्सेस को बैलेंस किया y डायरेक्शन में, तो F2 किसके इक्वल हो जाएगा F1 plus 100. The answer is 120. Now let us do the next numerical. See this numerical, student. Here a ring of mass m and radius r is given. इसकी रोटेशन दे रखी है आपको ओमेगा एंगुलर स्पीड which is rotating about vertical axis passing through the center O with 2 point masses each of mass m/8 resting at O. यहाँ पे 2 पॉइंट मास हैं O पे m/8. Now these masses can move radially outward along two massless rod fixed on the ring as shown in the figure. ये डायरेक्शन दे रखे, ये रेडियली आउटवर्ड मूव करेंगे. नाउ एट सम इंस्टेंट sorry, now at some instant the angular speed कितनी होगी 8/9 ओमेगा and one of the mass is 3/5 r from O, right, student? Now at this instant you have to find the distance of the other mass from O. ये आपको निकालना है. तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, दोबारा देख लेते हैं. किसी इंस्टेंट पे इन्होंने कहा है कि पूरे सिस्टम का जो एंगुलर वेलोसिटी है
वो है 8/9, मतलब कुछ ना कुछ कम हो गया ओमेगा से। एंड वन ऑफ द मासेस, और कोई एक मास जो है 3/5 आर पे चला गया फ्रॉम ओ। तो उस इंस्टेंट पे दूसरे मास का सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। नाउ वी कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन, according to the conservation of angular momentum, we can say that mr omega square o is equal to mr square multiply 8/9 ओमेगा, ये सिस्टम का हो गया, प्लस m/8 जो आपका है मास, उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर क्या बन गया 9/25, और उसकी स्पीड क्या है 8/9। सिस्टम की स्पीड क्या है स्टूडेंट 8/9, प्लस अब जो सेकंड मास है उसका हमने डिस्टेंस निकालना है x, तो वो हो जाएगा आपका m/8 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू में 8/9 ओमेगा। So from this equation conservation of angular momentum we can calculate the distance x, जो आंसर आ जाएगा आपका 4/5r. So very simple numerical. Now let us see the next numerical which is based on truss. अभी स्टूडेंट में आपको ट्रस दे रखा है स्टूडेंट BAECD, इस तरह का एक ट्रस है which is supported at point D, यहाँ पे supported है. It is subjected to a horizontal force P at E. Now you have to calculate the force in the member BC, which member BC ये वाला है जिसकी लेंथ है A. इसके अंदर आपको स्टूडेंट फोर्स इंड्यूस्ड जो है वो निकालना है. तो लेट अस सी दिस न्यूमेरिकल, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे. ये एंगल्स आपको दे रखे हैं 45, 45, 45 एंड 45 डिग्री. ये आपका हिंज्ड है, ये रोलर स्पोर्ट है. तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट फोर्सेस को एक्स डायरेक्शन में इसको बैलेंस किया. सम ऑफ द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 किया जब हमने, तो वहां से हमारा क्या आया 0 माइनस RB2 इज इक्वल टू माइनस P. ठीक है, ये आपका माइनस P है, और एक आपका जो रिएक्शन आएगा B पे, तो उसको हमने बोल दिया RB2, क्योंकि इस पे दोनों रिएक्शन आएंगे. इस पे तो केवल वर्टिकल आएगा रोलर स्पोर्ट पे, जबकि हिंज्ड स्पोर्ट पे दो रिएक्शन आएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. तो जब हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस किया तो हमारे पास क्या आया वैल्यू, RB2 की वैल्यू कितनी आ गई, P के बराबर आ जाएगी. उतना ही ये लेफ्ट वर्ड एक्ट करेगा जितना ये P मैग्नीट्यूड राइट वर्ड एक्ट कर रहा है. नाउ स्टूडेंट फोर्सेस अलोंग Y अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस RD इज इक्वल टू माइनस RB1, क्योंकि इस पे एक तो ये आ जाएगा और एक इस पे आएगा. तो यहाँ से हमें क्या मिला कि RD इज इक्वल टू RB1, तो दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, दोनों रिएक्शन. नाउ थर्ड इक्वेशन हमने अप्लाई करी स्टूडेंट, सम ऑफ द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट B इक्वल टू 0. तो जब हम B पॉइंट के अबाउट मोमेंट्स बैलेंस करेंगे तो B पॉइंट पे हमने ये देखा, तो यहाँ इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जब हम B पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो जो RD है आपका, ये RD है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो हमने लिख लिया RD इंटू 2a. वो किसके बराबर हो जाएगा, इस क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू P के बराबर. P इंटू में, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा a/2, तो P इंटू में a/2. तो फ्रॉम दिस थर्ड इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ RD. तो RD की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, P/4 के, विच इज इक्वल टू RB1. अब ये हमने यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से देख लिया. नाउ लेट अस डू द जॉइंट एनालिसिस ऑफ B. B जॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं ये जो AB मेंबर है, इसका जो साइन कंपोनेंट है
वो किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? वो आपका P/4 के बराबर हो जाएगा, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। PB1 हमने कैलकुलेट कर लिया P/4, तो P/4 जो है किसके बराबर हो गया? FAB sin 45। तो यहाँ से हमने फोर्स इन द मेंबर AB कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया? √2 P/4। Now similarly we can say that this P, ये P किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट? दिस इज इक्वल टू, सी दिस इक्वेशन, फोर्स इन द मेंबर BC प्लस FAB का इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट which is cos 45 degree. So we get this equation P is equal to FBC plus FAB cos 45 degree. Now from this equation we will calculate the value of FBC, which is equal to P minus FAB cos 45 degree. Further P minus FAB हमने निकाल दिया, √2 P/4, cos 45 1/√2, आंसर आ जाएगा आपका 3/4 P. So student, this was asked in this question कि आपको BC मेंबर में आपको निकालना था कितना फोर्स इंड्यूस हो गया. तो these problems सबको क्लियर है स्टूडेंट? So in the next class we will further continue the practice of problems. Thank you.